ذرا تصور کریں کہ آپ بازار سے میٹھے، خوشبودار اور خوبصورت آم لے کر آتے ہیں۔ آپ اسے کاٹتے ہیں، پہلا لقمہ منہ میں رکھتے ہیں اور بس آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک مزیدار پل کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اسی لمحے آپ کے جسم میں ایسا سفر شروع ہو چکا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ صرف چند منٹوں میں اس آم میں موجود درجنوں وٹامنز، طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس اور ایسے قدرتی کیمیکلز جو اللہ تعالیٰ نے اس پل میں رکھے ہیں، آپ کے جسم کے مختلف حصوں کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ سیدھے آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ آپ کے جلد کی مرمت کرنے لگ جاتے ہیں اور کچھ آپ کے دل کی نالیوں کی صفائی میں لگ جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک ایسا جز بھی ہے جس پر پچھلے کئی سالوں سے دنیا بھر کے سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ صرف آم کے بارے میں دو باتیں جانتے ہیں۔ ایک، یہ بہت میٹھا ہے، اور دوسرا، اس میں شوگر بہت زیادہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس میں 100 سے زیادہ بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ یعنی قدرتی فعال جز موجود ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ پورے موسم میں روزانہ ایک درمیانہ آم کھاتے ہو تو کیا جسم میں کوئی مثبت تبدیلی آتی ہے، یا یہ صرف سوشل میڈیا کی ایک اور کہانی ہے؟ آج ہم ہر دعوے کو صرف سائنس کی روشنی میں سمجھیں گے، تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی پل کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف دو نام سنتے ہیں، وٹامن سی اور فائبر، لیکن آم ان پلوں میں شامل ہے جس میں غذائیت کا ایک پورا خزانہ موجود ہے۔ اس میں تقریباً 10 ضروری وٹامنز، کئی اہم منرلز اور 15 سے زیادہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آم میں 100 سے زیادہ قدرتی بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈز بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم بات کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے جز کی، جس کی کمی دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی بینائی کو متاثر کرتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ آم میں وٹامن اے موجود ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دوستو، آم میں وٹامن اے موجود نہیں ہوتا، لیکن وٹامن اے کا خام مال یعنی را مٹیریل موجود ہوتا ہے جس سے وٹامن اے بنتا ہے۔ اصل میں آم میں بیٹا کیروٹین موجود ہوتا ہے۔ ہمارا جسم کیا کرتا ہے کہ جب ہم آم کھاتے ہیں تو اس میں سے اپنے حساب سے وٹامن اے بناتا ہے۔ آم میں دراصل بیٹا کیروٹین موجود ہوتا ہے، یہ ایک پگمنٹ کی شکل میں آم میں موجود ہوتا ہے اور یہی آم کو قدرتی سنہری رنگ دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا کیروٹین جسم میں جا کر کرتا کیا ہے؟ فرض کرے رات کا وقت ہے اور اچانک پورے گھر کی لائٹس بند ہو جائے، شروع کے چند سیکنڈ تک آپ کو کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا اور پھر آہستہ آہستہ آنکھ اندھیرے کی عادی ہونے لگتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ صلاحیت ایک خاص پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے جسے روڈوسپن کہا جاتا ہے، اور روڈوسپن بنانے کے لیے جسم کو وٹامن اے چاہیے ہوتا ہے۔ اگر وٹامن اے کم ہو جائے تو سب سے پہلے رات میں دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے، پھر آنکھیں خشک رہنے لگتی ہے اور آخر میں کرنیا بھی متاثر ہونے لگتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بچوں میں قابل علاج اندھے پن کی وجہ وٹامن اے کی کمی ہے، اور مناسب مقدار میں وٹامن اے اس خطرے کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ تو صرف شروعات تھی۔ اب ہم بات کریں گے آم کے دو ایسے اینٹی آکسیڈنٹس کی جو سیدھے جا کر آنکھ کے سب سے حساس حصے میں جمع ہوتے ہیں، اور سائنسدان انہیں قدرتی سن گلاسز کہتے ہیں۔ یہ دونوں اجزاء کیا ہے اور یہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں، اور کیا یہ دونوں سورج کی روشنی اور موبائل کی روشنی سے ہماری آنکھ کو بچا سکتے ہیں؟ آئیے اگلے حصے میں اسے سمجھتے ہیں۔ دوستو، ابھی تک ہم نے صرف ایک وٹامن یعنی وٹامن اے کی بات کی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شاید آم کا سب سے قیمتی جز بھی نہیں، کیونکہ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو ایسے اینٹی آکسیڈنٹ کے بارے میں جس پہ دنیا بھر کے سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں صرف آنکھ تک نہیں پہنچتے، لیکن آخر ایسا کیوں؟ اگر آپ نے کبھی بغیر چشمے کی سورج کی روشنی کی طرف دیکھا ہو یا کئی گھنٹے مسلسل موبائل استعمال کیا ہو تو لازمی آپ کی آنکھیں تھک جاتی ہوگی، دھندلا نظر آتا ہوگا۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے دوستو؟ کیونکہ روشنی صرف دیکھنے میں مدد نہیں دیتی، اگر روشنی بہت زیادہ ہو تو یہ آنکھ کی نازک حصوں پر دباؤ بھی ڈالتی ہے۔ اور اب قدرت کا کمال دیکھیں، آم میں موجود لیوٹین اور زیگزنتین خون کے ذریعے سفر کرتے ہوئے سیدھے آنکھ کے اس حصے میں پہنچتے ہیں جسے میکولا کہتے ہیں۔ یہ وہی حصہ ہے جس کی مدد سے آپ موبائل پر الفاظ پڑھتے ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہوئے روڈ دیکھتے ہیں یا اپنے بچوں کو، پوتے نواسیوں کو دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لیوٹین اور زیگزنتین وہاں جا کر کرتے کیا ہے؟ دوستو، یہ ایسے قدرتی فلٹر کی طرح کام کرتے ہیں، جیسے اگر آپ اپنے کھڑکی پر شیشہ لگا دیں جو تیز دھوپ کا کچھ حصہ روکے، بالکل اسی طریقے سے یہ نقصان دہ
रोशनी और फ्री रेडिकल से हमारी आंखों को बचाते हैं। लेकिन याद रहे, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आम खाने से नजर का चश्मा उतर जाएगा, लेकिन ये सूरज की शुआओं और मोबाइल की रोशनी से आपकी आंखों की हिफाजत जरूर कर सकता है और आपकी आंखों को सपोर्ट करता है। दोस्तों, आंखों की हिफाजत तो सिर्फ आगाज था, अब वो विटामिन आने वाला है जो सिर्फ जल्द ही नहीं बल्कि जिस्म के अंदर होने वाले मुरम्मत का चीफ इंजीनियर है। फर्ज करें आपके हाथ पर मामूली खराश आ जाए, या एक्सरसाइज के बाद पट्टों में नुकसान हो, या सूरज की शुआओं से आपके जिल्द मुतासिर हो, तो हमारा जिस्म इन सब की मुरम्मत कैसे करता है? दोस्तों, ये काम एक खास प्रोटीन करता है जिसे साइंस की जबान में कोलेजन कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर जिस्म में विटामिन सी पूरी मिकदार में ना हो तो ये कोलेजन कम बनता है या नहीं बन पाता। इसीलिए विटामिन सिर्फ नज़ले जुकाम का विटामिन नहीं है, बल्कि ये जिल्द, मसूड़ों, हड्डियों, बल्कि यहाँ तक कि खून की बारीक नालियों और जख्म बनने के अमल के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, जब आप आम खाते हैं तो इसका विटामिन सी खून में शामिल होकर इन केमियाई अमलों में हिस्सा लेते हैं जहाँ कोलेजन बनता है। इसीलिए सेहतमंद जिल्द सिर्फ महंगी क्रीमों से नहीं आती बल्कि अच्छी ग़िज़ा से भी बनती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आम का खामोश हीरो ना विटामिन ए है ना विटामिन सी है, बल्कि एक ऐसा जुज़ है जिसे हमारा जिस्म हजम भी नहीं कर पाता, फिर भी वो हमारा सेहत बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइबर की। दोस्तों, फाइबर की खास बात यह है कि ये जिस्म को तवानाई नहीं देता, लेकिन सेहत के लिए बेहद जरूरी है। जब आम का फाइबर आंतों में पहुंचता है तो पाखाने को नरम करता है, जिससे कब्ज का खतरा कम हो जाता है। लेकिन असल फायदा इससे कहीं बढ़कर है। फाइबर का फायदा यहाँ तक नहीं है, आपके आंतों में कर्बो अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जिसे गट माइक्रोबायोम कहा जाता है, और ये फाइबर इन्हीं बैक्टीरिया की खुराक बनता है। यहाँ यानी हमारे गट बैक्टीरिया को खुराक देते हैं ताकि वो सेहतमंद रहे, वो पले फूले। बदले में ये बैक्टीरिया ऐसे मादे बनाते हैं जो हमारी आंतों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। यही वजह है कि साइंसदान कहते हैं अगर आंतें सेहतमंद तो पूरी बॉडी सेहतमंद। दोस्तों, अभी तक हमने विटामिन और फाइबर की बात की है, असल हकीकत अभी बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे आम में मौजूद ऐसे एंटीऑक्सीडेंट की जिसका नाम है मैंगेफेरन। ये एक ऐसा जुज़ है जिस पर कैंसर, दिल की बीमारियों, दिमागी सेहत के हवाले से दुनिया भर में रिसर्च हो रही है। लेकिन क्या ये वाकई इतना ताकतवर है या सोशल मीडिया इसे बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? आइए अगले हिस्से में सिर्फ साइंस की बुनियाद पर इसका जवाब समझते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि आम में मौजूद विटामिन और फाइबर आंतों, जिल्द और आंखों की किस तरह मदद करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जिस्म में हर सेकंड एक ऐसे जंग जारी रहती है कि जिसे ना आप देख सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं, और यही जंग फैसला करती है कि आपके खुलिये सेहतमंद रहेंगे या वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे, तो शायद आपको यकीन ना आए। आइए जिस्म के अंदर चलने वाली इस जंग को समझते हैं। तसव्वुर करें कि आपका जिस्म एक बहुत बड़े शहर की तरह है। इस शहर में तकरीबन 37 ट्रिलियन खुलिये दिन रात काम कर रहे हैं। ये खुलिये सांस लेते हैं, तवानाई बनाते हैं और हर लम्हा आपको जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी आपका जिस्म तवानाई बनाता है तो साथ में कुछ ऐसे खुलिये बनते हैं जो जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें साइंस की जबान में फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। दोस्तों, ये ऐसे शरारती जर्रात है कि अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो खुलियों की दीवारों, प्रोटीन और यहाँ तक के डीएनए को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, और इस अमल को कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और दिलचस्प बात यह है, उम्र बढ़ने के साथ फिजाई आलूदगी, सिगरेट नोशी, कम नींद और गैर मतवाजिन ग़िज़ा, ये सब मिलकर इस जंग को मजीद खतरनाक बना देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को इस जंग में अकेला नहीं छोड़ा। कुदरत ने कुछ फलों, कुछ ग़िज़ाओं में ऐसे मुहाफिज रखे हैं जो इस नुकसान को कम करने में मदद करते हैं, और आम इन्हीं फलों में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि आम का वो मुहाफिज है कौन? अगर आप इस वीडियो में सिर्फ एक नाम याद रखना चाहें तो वो है मैंगेफेरन। ज्यादातर लोग कभी ये नाम सुनते भी नहीं, हालांकि साइंसदान पिछले कई सालों से
इस पर तहकीक कर रहे हैं। मैंगीफेरिन एक खास पॉलीफेनोल एंटीऑक्सीडेंट है जो खास तौर पर आम में पाया जाता है। आसान ज़बान में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। फर्ज करें कि आग लगी है और आपके घर में चिंगारियां गिरना शुरू हो जाती है। अगर कोई फौरन उन्हें बुझा दे तो आग नहीं लगेगी, लेकिन अगर कोई ना हो तो यही चिंगारियां पूरे घर को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स भी ऐसे ही होते हैं और मैंगीफेरिन इन फ्री रेडिकल के असर को कम करने में हमारे बॉडी की हेल्प करता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये किसी बीमारी की दवा नहीं है, बल्कि जिस्म के कुदरती दिफाई निजाम को सपोर्ट करने वाला एक मुहाफिज जरूर है। लेकिन हैरत अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैंगीफेरिन अकेले नहीं आया, इसके साथ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद है जो एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। और यही वजह है कि साइंसदान सिर्फ एक विटामिन पर नहीं बल्कि पूरे पल पर तहकीक कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सब एंटीऑक्सीडेंट एक जैसे नहीं होते। आम में क्यूरेक्टिन, गैलिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड और एलैजिक एसिड जैसे कई कुदरती मुरक्कबात पाए जाते हैं। ये सब मिलकर जिस्म में मुख्तलिफ तरीकों से काम करते हैं। कोई फ्री रेडिकल के असरात को कम करने में हिस्सा लेता है, कोई खुलियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं और कोई जिस्म के कुदरती दिफाई निजाम को सपोर्ट करता है। इसीलिए साइंसदान कहते हैं कि किसी एक सप्लीमेंट के बजाय पूरा फल खाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कुदरत ने ये तमाम अज्जा एक टीम की शक्ल में रखे हैं। 2023 में न्यूट्रंस में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक फलों में मौजूद मुख्तलिफ पॉलीफेनोल्स इकट्ठे मिलकर सेहत पर ऐसे असरात डाल सकते हैं जो किसी एक अलग कंपाउंड से मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस तस्वर को फूड मैट्रिक्स इफेक्ट भी कहा जाता है, यानी पूरा फल अपनी मजमूई अज्जा की वजह से ज्यादा फायदा देता है, न कि सिर्फ एक जूस की वजह से। अब आप समझ रहे होंगे कि साइंसदान आम को सिर्फ एक मीठा फल क्यों नहीं समझ रहे, लेकिन अभी भी एक बहुत अहम सवाल बाकी है। अगर आम में इतने सारे फायदे मौजूद हैं, तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि आम शुगर बढ़ाती है या ये सिर्फ मीठा है? क्या शुगर के मरीज कभी आम नहीं खा सकते? और रोजाना आम खाने का सही वक्त क्या है और आम के साथ क्या खाना चाहिए ताकि बेहतर रिजल्ट मिले? और किन लोगों को आम से परहेज करना चाहिए या खाने में एहतियात करनी चाहिए, ये सब हम अगले हिस्से में समझेंगे। अगर आपने कभी आम के बारे में बहस सुनी होगी तो एक जुमला आपने जरूर सुना होगा कि शुगर है, आम को हाथ भी मत लगाओ। ये बात इतनी बार दोहराई गई है कि लोग इसे हकीकत समझने लगे हैं। साइंस इस बारे में क्या कहती है? क्या आम वाकई शुगर का दुश्मन है या हम सिर्फ आधी बात जानते हैं? आइए सबूत की बुनियाद पर साइंस की रोशनी में समझते हैं। फर्ज करें आपके पास दो गाड़ियां हैं, दोनों में एक जैसा पेट्रोल है। एक 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है और दूसरी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, तो दोनों एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह हर कार्बोहाइड्रेट जिस्म में एक जैसे खून की रफ्तार नहीं बढ़ा सकती। इसीलिए साइंसदान दो इस्लाहें इस्तेमाल करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। मुश्किल लग रहा है ना? चलिए इसे आसान करते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ ये बताता है कि कोई ग़िज़ा कितनी तेजी से शुगर बढ़ा सकती है, और ग्लाइसेमिक लोड में ये भी देखा जाता है कि वो ग़िज़ा आपने कितनी मिकदार में लेनी है। और यही वजह है कि एक दरमियाना आम खाना और 3 बड़े आम एक साथ खाना बराबर नहीं हो सकते। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के मुताबिक ज़ियाबतीस के मरीज मुकम्मल फल छोड़ने के बजाय पोर्शन साइज कार्बोहाइड्रेट पर तवज्जो दें। पूरे फल आमतौर पर जूस के मुकाबले में ज्यादा बेहतर इंतखाब हो सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर मौजूद होता है। अगर आप सेहतमंद हैं तो रोजाना एक दरमियाना आम आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा हो सकती है, लेकिन अगर आप एक साथ 2 या 3 आम खाएं तो लाजमी सी बात है कि जिस्म में शुगर की मिकदार भी ज्यादा हो सकती है। एक और गलती बहुत से लोग आम का जूस बनाकर पीते हैं। जब आप आम का जूस बनाते हैं तो फाइबर का फायदा कम हो जाता है और आप आम भी ज्यादा पी जाते हो, जबकि सालिम आम आप 1 से 2 नहीं खा सकते। इसीलिए पूरा आम खाना हमेशा जूस से ज्यादा बेहतर इंतखाब हो सकता है। आम कब खाना बेहतर है? एक अहम सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि आम खाली पेट लेना चाहिए, रात को, या खाने के बाद खाना चाहिए। साइंस की नजर में किसी एक वक्त को जादुई नहीं कहा जा सकता। अगर आप नाश्ते के बाद या दोपहर के वक्त या किसी खाने के साथ खाएं जिसमें प्रोटीन और चिकनाई मौजूद हो तो आप ज्यादा देर तक सैर भी ले सकते हैं। मसलन आम के साथ सादा दही या ड्राई फ्रूट वगैरह एक
बेहतर इंतजाज हो सकता है। अगर आपको ज़ियादतीस है तो आम खाने से पहले अपने कार्बोहाइड्रेट्स का हिसाब जरूर रखें। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो मिकदार का खास ख्याल रखें। अगर गुर्दों की कोई खास बीमारी है या डॉक्टर ने मना किया है तो डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। एक और अहम बात, अगर किसी चीज से फायदा होता है तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ज्यादा खाने से ज्यादा फायदा होगा। सेहत का हमेशा एक ही उसूल है, एतदाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि आम सिर्फ एक मीठा फल नहीं है, बल्कि इसके अंदर विटामिन ए बनता है जो हमारी आंखों को सपोर्ट करता है। इसके अंदर ल्यूटिन और ज़ेक्सेंथिन होता है जो हमारे आंखों को एक सन ग्लास की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। आम के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है जो कोलेजन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें फाइबर होता है जो हमारे आंतों और दिल के सेहत के लिए जरूरी है। इसके अलावा मैंगनीफेरिन और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट हमारे दिफाई निजाम को सपोर्ट करते हैं और हमारे जिस्म को फ्री रेडिकल्स के नुकसानदा असरात से बचाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आम दवा नहीं, ये हमारे जिस्म को सपोर्ट जरूर करता है, बीमारियों से जरूर बचा सकता है, लेकिन ये किसी दवा का मुतबादिल नहीं। आम खाने से न शुगर खत्म होगी और ना नजर वापस आएगी और ना ही दिल की बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ, आप इन बीमारियों से जरूर बच सकते हो। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आज से पहले आप जब भी आम खाते थे तो आप सिर्फ इसका मिठास महसूस करते थे, लेकिन अब उम्मीद है कि आम के अंदर मौजूद साइंस भी आपको याद आएगी। अल्लाह ताला ने फलों में ऐसी बेशुमार नियामतें रखी है, लेकिन हम इनका जायका तो जानते हैं, लेकिन इसके अंदर मौजूद फायदे नहीं जानते। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में अमरूद, पपीता या किसी और फल को इसी तरीके से साइंसी अंदाज में डिटेल से बयान करें तो कमेंट में सिर्फ इस फल का नाम लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।